चलिए, so Fubini's theorem for calculating double integrals. So the concept of double integrals was going on. How to calculate now double integral, that is given by Fubini's theorem. Fubini's theorem. For calculating double integral. So we will take one example in particular, and then we will write the general formula for finding this. So what I am taking, suppose a function is given to you, function of two variables. This you want to calculate the volume. Problem is find the volume. Under the plane. Under the plane. This is plane given to you over rectangular region R, x lying 0 to 2 and y lying 0 to 1. Okay. So here we can plot this surface. So this is your plane. X plus y plus z is equal to 4. You will plot it. You can see this plane is coming. This is your z axis. In z axis, it has intercept 4. And if you take the projection on the xy plane, suppose this is the projection, and here I can take, this is your y-axis. Y-axis how much? 0 to 1. So this is 1, and this is your x-axis. It x-axis 0 to 2. This is 2. And here, if you will see somewhere, here it will be having the, this is the origin. The dotted line you can see here. So it will be origin somewhere here. Okay. It is like this. X, this is y. So now I want to find the volume under the plane. This is your plane. This is the plane. So how I will find it? Like you have area. Area कैसे find करते थे भाई? If you have y is equal to fx, you know, you take a strip. Same thing I will take here. I will take a small slice in this, and how I will take a slice inside this, because it's a body. Yeah, you can see it looks like this solid body, a surface. So slice now I can take in two way. I can take parallel to y axis and parallel to क्यूबॉइड बनेगा. क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबॉइड तो नहीं,
एक सरफेस है, क्यूबाइड में तो ऑल एजेस 3 डिफरेंट एजेस होती हैं, तो ओके सर। है ना। तो वी विल टेक अ स्लाइस perpendicular to x axis suppose, so you can take like this, इसमें से एक स्लाइस निकाला हमने, जैसे स्लाइस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जैसे आप एक ब्रेड लेके आए, ब्रेड देखी, ब्रेड जो आपका क्या है, ब्रेड इज लाइक अ क्यूबॉइड, है ना। तो ब्रेड इज मेड ऑफ स्लाइसेस, यू कैन टेक वन स्लाइस, तो एक हमने स्लाइस इसमें से लिया, तो आई एम टेकिंग द स्लाइस, दिस रेड कलर स्लाइस, है ना। हाउ, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, like this. So here, if you want to find, so what I will take now, this slice has some, देखो this, some length, and this is your height. So if you want to find the area of this slice, what is the area of this slice? कि यहाँ पर it has area, है ना. So what is the area? So you can see here y is running from 0 to 1. So area of this slice is ax, because x is, it will be a function of x. What will be the area? देखिए, अब एरिया कैसे लेंगे आप, वाई इज चेंजिंग, अब इसका एरिया कैसे लोगे, जो स्लाइस है, ये स्लाइस ऐसे हो गया जैसे अब आपके पास, यू वांट टू फाइंड द एरिया, तो एरिया के लिए क्या करते हैं, यू विल टेक अ स्ट्रिप हेयर, स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, dy, ओके, एंड व्हाट इज दिस, बिलो दिस, व्हाट इज दिस, fx। नहीं fx क्यों, y भी तो है, ये सरफेस पे है ना, ये कितना है, z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये तो यही रहेगा ना, 4 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्चुअली क्या होगा, z dy, द स्ट्रिप इज dy, दिस इज dy, एंड दिस इज z, ओके। जैसे आपका सरफेस होता था, वहां पर आपके पास क्या होता था, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। और यहाँ पे आप एक स्ट्रिप लिया करते थे, सपोज ए टू बी लाई कर रहा है, तो क्या करते थे आप, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, वाई लेते थे ना, वाई डी एक्स, हेयर यू हैव इंटीग्रेशन जेड डी वाई, एंड लिमिट इज, because y is changing from 0 to 1. Is it clear? This is the area of this slice, a small slice. बोलिए। यस सर। सर लेकिन x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में? उधर कांस्टेंट रहेगा, where you are integrating x with respect, with you are solving it, x is keeping constant, ठीक है, जैसे because a function of two variables, तो इंटीग्रेशन में भी सेम कंसेप्ट रहेगा, if you are having ty, x will treat as a constant, so integration 4 minus xy minus y square by 2, ओके। तो ये लिमिट जो है y की है, लेकिन अभी ये वॉल्यूम नहीं निकल के नहीं आया है, इट इज द एरिया, नाउ आई वांट टू फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करें, बताइए, एक स्लाइस का एरिया है, क्या कर सर सकते हैं, पूरे स्लाइस को सर 0 से लेकर 2 तक सर इंटीग्रेट एन, कर देंगे। यस यस सर, यस। एग्जैक्टली, वॉल्यूम के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 0 to 2, ये लिमिट किसकी होगी, x की, अब x इज इक्वल टू 0 to 2, एंड ax इज, मतलब एक स्लाइस का एरिया को हम पूरे इसमें इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, दैट मीन्स 0 to 2, 0 to 1, 4 माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी यहाँ क्या था, ax dy था, ax dx होगा, है ना, dx,
क्योंकि एक्स पे लिमिट लगी हुई है अभी। तो ए एक्स तो ऑलरेडी आपके पास है ही है, डी वाई एंड देन डी एक्स इसके लिए। तो डी वाई मतलब वेयर यू स्टार्ट, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। तो ये जो पहली लिमिट है डी वाई करोगे तो ये वाई की लिमिट अंडरस्टूड है, और ये है एक्स की लिमिट। ठीक है, so in this way you can get the volume. If you will solve it, you can solve it. How to solve? देखो solve कर लेते हैं चलो। तो firstly I will integrate inside to keeping x limit as it is, इसको इंटीग्रेट किया तो यू हैव 4 क्या होगा 4x 4y माइनस x y-y² लिमिट 0 to 1 dx। ओके, कीपिंग when you are integrating with respect to y, keeping x constant। तो x constant है तो क्या हो जाएगा x y। क्लियर? फिर यू कैन राइट यस 0 to सर। 2। हाँ, अब ये 1 लिमिट किसकी लगानी है, 1 लिमिट है 4y की, ध्यान रखना x एज इट इज रहेगा, है ना, x तो कांस्टेंट है तो 1 रखा हमने पहले यहाँ पर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज हाउ मच 4 माइनस x माइनस 1/2 माइनस 0 रखा तो 0 0 0 है ना, ये सब 0 हो गए इंटू dx। तो हाउ मच इट इज कमिंग 0 to 2। अब इसे फिर से इंटीग्रेट कर दिए, ये कितना हो गया देखिए 4 माइनस हाफ 7/2 माइनस x dx। now again integrating with respect to x, so it will become 7x/2 minus x² by 2 limit 0 to 2, and it will be coming after solving 5। चलिए 5 आ जाए, ये तो 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आप रखेंगे 7 to the 14/2 7 minus 2 5। so the volume will be 5। so the volume of this body, है ना, which is coming under this surface will be 5। so in this way you can find the volume। so volume is what, you can say that volume is the expression, this expression जो expression ली गई थी, it is called iterated और repeated integral। इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं iterated इंटीग्रल, या रिपीटेड, या आइट्रेशन कर रहे हैं ना, पहले y की वैल्यू रखी फिर x की, इट इज कॉल्ड आइट्रेशंस। न्यूमेरिकल ऐसे आपने मेथड पढ़े होंगे इटरेटिव मेथड्स, उसमें ये करते थे, पहले वैल्यू रखते थे फिर सॉल्व करते थे 1/1, या रिपीटेड इंटीग्रल्स है। तो बाय दिस रिपीटेड इंटीग्रल्स वी कैन फाइंड द वॉल्यूम। द सेम थिंग आई कैन डू बाय टेकिंग द स्लाइस पैरेलल टू y। हियर आई टुक स्लाइस पैरेलल टू x। इसी को अगर मैं स्लाइस पैरेलल टू y लेता सपोज, सेम फिगर, सपोज आई एम टेकिंग स्लाइस पैरेलल टू y, उस केस में क्या होगा देखिए, इसी फिगर में बना दे इन प्लेस ऑफ यस दिस। सर। चलिए इसे रेड को हटा देते हैं, इन प्लेस ऑफ रेड आई एम टेकिंग द स्लाइस पैरेलल टू y axis। तो योर स्लाइस विल बी लाइक दिस पैरेलल टू y। so now this time x will be increasing, this is your slice। okay, तो आपका वही प्लेन था। सर नए पेज पे बता देते ना सर इसको। मैं पैसे तेरे बता रहा हूँ, पहले नहीं बोल सकते थे यार, पूरा इरेज करवा दिया, अब यही बताऊंगा। ये स्लाइस है आपका, अब उसके प्लेस से बस क्या है पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, ये है फिगर सेम रहेगी आपकी।
फिगर सेम है, बस ये वही प्लेन है आपका, दिस इज योर सेम, z is equal to 4 minus x y. Now I am taking this slice. Clear? ये वाला, this is parallel to y axis. ये स्लाइस है, अब सर ये स्लाइस पैरेलल में टू एक्स एक्सिस होगा ना? है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू एक्स, यस सर। हाँ पैरेलल टू x एक्सिस एग्जैक्टली, वो पैरेलल टू y था, पैरेलल टू x है ये। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, x इंक्रीज कर रहा है परपेंडिकुलर टू, यू कैन से परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कह सकते हैं, वाला था परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब इस केस में बताइए एरिया क्या होगा, आई विल टेक द एरिया ऑफ दिस स्लाइस, हायर आई एम टेकिंग एरिया, 0 to 2. तो ए वाई ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके Yes, पास अब क्या है वाई है ना, when you are taking this, so it will be this strip, तो इस स्ट्रिप की क्या होगी आपके पास, ए वाई लिखेंगे हम, क्योंकि लिमिट किसकी चेंज हो रही है यहाँ पर अब, सर y की, वाई की Yes, sir. लिमिट, Y. y वाई की लिमिट चेंज हो रही है, देखो कितना है, नो सर x x की, सर x की, एक्स की चेंज हो रही है ना, ये 2 हो जाएगी इसकी लिमिट, सर 0 एक्स की to 2. लिमिट चेंज 0 to 2, हाँ ठीक, और z तो सेम है ऊपर आपका सरफेस, 4 माइनस एक्स सर माइनस 4 वाई, minus x minus y, और क्या हो रहा है ये dx है ना, या dy है, बताइए स्ट्रिप की, dx होगा या dx dx होगा सर, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ये dx है, तो दिस इज द एरिया, एरिया है ये है ना, ए वाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक्स फिक्स है, जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो वाई का फंक्शन आता है, ये देखो ये हमने सॉल्व किया था तो वाई का फंक्शन आ रहा था, ये वाई की लिमिट रख दी थी आपने यहाँ पर, तो एक्स का फंक्शन आ रहा था ना, यू कैन सॉल्व इट, इसको सॉल्व जब आप करेंगे, चाहे यहाँ सॉल्व करके देख लो उसको, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी, देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई, है ना, नाउ कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट 0 to 2, so how much, 8 minus 4 by 2 is 2 8 minus and minus 2y, 0, है ना, और जब 0 रखोगे x की प्लेस पे 0 0 0, so it is coming 6 minus 2y, ये भी clear? 5 ही आएगा. अब वॉल्यूम तो सेम ही आना है, वॉल्यूम क्यों बदल जाएगा बॉडी का, फिगर तो सेम है ना, नाउ यू विल फाइंड वॉल्यूम, so now volume will be what, सेम जैसे आपने यहाँ किया था, 0 to 2x की लिमिट ली थी, आई विल टेक लिमिट, आप किसकी लिमिट लेंगे, स्लाइस को आई कैन रन फ्रॉम यहाँ से सर यहाँ, y 0 to axis चलेंगे, तो y is 0 to 1 6 minus 2y and dy, इसकी वैल्यू dy निकाल लो जरा, ये ब्रैकेट है, 6y minus y 6y square by minus y square, कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा वॉल्यूम है ना, 6y minus y square, हाँ सर, तो क्या आएगा 6 minus 1 5, so you can take slice either perpendicular to x axis or perpendicular to y axis, perpendicular to y axis में your area will be ay, volume will be this, and perpendicular to x axis पे your area will be ax and volume will be this, is it clear, so in both the way you can solve, so the point is previous theorem states that if your function is continuous throughout the rectangular region, है ना, continuity is the condition, then the volume will be given by this iterated integral, so in general I can write, so theorem says previous theorem फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी Fubini theorem, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब कि आगे सेकंड फॉर्म भी आ रही होगी तभी, इट इज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्यों है, बिकॉज
here I am taking the regions are rectangular, so your both the limit a and b, x and y limit, they are some real numbers, है ना? But it is not always the case. The limits may be functions also. That will be second form. The first form say if fxy is continuous throughout the rectangular region R, and this is your y, suppose, then is double integral R fxy dA, this equal to a to b c to d fxy. अब ये c to d इसकी लिमिट आपकी पहले अगर c to d लिखा है तो dy की है ना, तो dy dx this equal to c to d a to b fxy dx dy इसके इक्वल होता. Okay, this is the Fubini theorem and it will give you the volume. It gives the volume under the surface z is equal to fxy. बताइए, पास समझ में आई? Yes, sir. So we may calculate the double integral by integrating it either order. किसी भी ऑर्डर में लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, either dy dx or dx dy. It will give you the same quantity because it is giving you physically, you can see it is giving you the volume. Example 1 है calculate double integral R fxy dA, where fxy is 100 minus 6x square y, 6 है ये, and R is given to you 0 to 2, y is given to you -1, 2 plus 1. So here you just see that you have given fxy and you have to find the volume. So limit, you can choose any limit, है ना? पहले देखो, sometimes you will see, sometimes it will be easy to take first y limit and then x. Sometimes it will be easy to take first x limit and then y. This thing you have to see by looking at the problem. यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो अगर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो व्हाट विल हैपन, पहले एरिया निकालेंगे तो 100y माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ये तो इजी है ना. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, आई विल टेक द प्रॉब्लम्स व्हेन इट विल बी कमिंग, कि समटाइम्स पहले अगर हम dy के रेस्पेक्ट में कर लेंगे तो इजी हो जाएंगी और फिर x के रेस्पेक्ट में कर देंगे ना. आई विल टेल द प्रॉब्लम्स व्हेन इट विल बी कमिंग, आई थिंक. हाँ, जैसे ये एक प्रॉब्लम है, देखो. हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, देखिए. इसे तो आप कर लेंगे अपना, इट्स नॉट अ बिग इशू, सिंपल प्रॉब्लम है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एग्जाम्पल 2 पेज 840, ये होम असाइनमेंट है, इसे आप करेंगे अपनी होम असाइनमेंट की कॉपी पे. प्रॉब्लम देख लीजिएगा. एक्सरसाइज पे एक प्रॉब्लम है आपके, एक्सरसाइज 15.1, 15 चैप्टर है ना, इसमें एक ही प्रॉब्लम है आपकी, बस 15. Evaluate the double integral. Evaluate the double integral
R x y cos y dA, where R is zero to pi. Okay. अब यहाँ पे order you have to choose order by yourself because Fubini theorem says you can take any order. So this you can write. Suppose I am taking firstly the limit of dy. I am taking firstly the limit of dy. So what will happen? 0 to pi xy cos y dy is so 0 to pi and -1 to 1 minus dA. 1 to 1. ठीक है xy cos. अब यहाँ क्या करना होगा आपको बताइए इंटीग्रेशन कैसे करें? सर सर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन सेकंड फंक्शन मान के मल्टीप्लीकेशन क्योंकि x तो कांस्टेंट है. अब यहाँ प्रोडक्ट टू फंक्शन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर आप है ना. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या लिखोगे? x तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos y इज sin y है ना. और लिमिट भी है इस पे. माइनस लिमिट भी तो है यस सर 0 टू पाई. लिमिट पूरे पे लगेगी इस पे सर माइनस इंटीग्रेशन ये x बाहर है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ y फर्स्ट फंक्शन 1 और फिर इंटीग्रेशन sin y dy अब यहाँ पर देखो साइन ये तो 0 हो जाएगा आपके पास है ना. अपर लिमिट साइन पाई 0 साइन 0 0 तो x इंटू ये पूरा टर्म तो 0 हो गया. ओके. अब साइन y का यस सर यस सर साइन y माइनस का cos y माइनस नहीं सर प्लस cos y हो गया नहीं यहाँ पे लिमिट भी तो लगेगी पहले आपकी. जाओ ना यहाँ इंडिकेट किया है sin y cos y आएगा 0 टू पाई लिमिट यहाँ लग जाएगी ना. इसको इंडिकेट किया है आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो यहाँ भी तो लिमिट लगेगी. क्यों? जी सर अब ये तो 0 0 हो गया सर ये भी अब ये 0 माइनस 0 0 0 आ गया है ना. इट इज 0. अब इसको अगर मैं पहले विद रेस्पेक्ट टू x कर लेता तो क्या होता? इसे अगर मैं ऐसे नहीं लेंगे आई एम टेकिंग सपोज 0 टू पाई -1 टू माइनस 1 x y y cos y dx dy ऐसे करते तो क्या होता देखिए. अब x के लिए आप करते हैं ना तो ये आपका पूरा कांस्टेंट हो जाता तो क्या होता 0 टू पाई और x विल बिकम x² बाई 2 है ना. बोलिए y cos y तो एज इट इज x² 2 हो जाता लिमिट -1 -1 टू to +1 dy. ये क्या होता सर 1/2 हो जाता है -1/2 सर 0 हो जाता है ये भी 0 आ सर जाता है पहले ही 0 क्योंकि ये आउट फंक्शन से आपका आउट फंक्शन है. आउट फंक्शन में -a टू a लिमिट होती है 0. डायरेक्ट आपको कंसेप्ट याद हो डबल इंडेफिनिट इंटीग्रल का यस सर है ना. अब देखिए तो कौन सा इजी पड़ा? ये ज्यादा इजी था है ना. यहाँ पे आपको पूरा बाई पार्ट करना पड़ा. यहाँ कोई स्टेप मिस अगर गलती से गलत कर देते आंसर कुछ और आ जाता. तो यहाँ पर अगर मैंने पहले dx का ऑर्डर लिया तो डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन में आपकी क्या चीज हो गई 0 हो गई. तो व्हेन यू आर सॉल्विंग इट कॉम्पिटिशन में से क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर आपको दे नहीं दिया होगा चेंज ऑफ द ऑर्डर करके करेंगे आप तो क्विकली आंसर आ जाएगा वरना आप सॉल्व करेंगे पूरा. तो हियर यू हैव टू चूज बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम विच इटरेटिव ऑर्डर इज इजी. ठीक है.
तो यहाँ पर इससे हमारे पास डायरेक्ट करके आ गया आंसर। ओके, टाइम की वैल्यू आपको Yes, sir. पता चली गई है क्विज 1 में टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेथड आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड हम जल्दी और सही आंसर दे आपको। ये चीजें सीखने की होती हैं बस। एक और प्रॉब्लम है इसकी, प्रॉब्लम 17 है, देखिए। पेज 841 पे, evaluate this double integral e to the power x minus y dA r is given to you x0 to ln2। ln का मतलब बेस 10 पे होता है, 10 पे है, ये ई पे होता है, आई थिंक y होता है बेस 10। E पे y बेस 10, अगर log होता है तो वो बेस 10 ln2। here you have to find it। तो यहाँ पर तो ये तो सिमेट्रिक फंक्शन ही है, कोई भी लिमिट ले सकता है ना, क्योंकि ये x माइनस वाई है। सॉल्व कर सकते हैं इसे। सपोज आई एम टेकिंग पहले ई एक्स इंटू ई वाई से ब्रेक कर लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, बिल्कुल सिमेट्रिक फंक्शन है, लिमिट भी सेम है। तो 0 to ln2 क्योंकि x माइनस वाई को आई कैन राइट दिस, है ना। पहले सपोज dx ले लिए, फिर dy ले लिए, डजंट मैटर। इट विल बिकम 0 to ln2 e to power minus y will treat as a constant, e to power x का e to the power x 0 to ln2 dy। so how much? E to the power ln2 is how much? 2 2 2 हो जाएगा minus e to power 0 is 1, है ना। 1 तो ये 1 हो गया। अब e के पावर माइनस वाई का अगेन e के पावर माइनस वाई का e to power माइनस वाई अपॉन माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो माइनस आ जाएगा 0 to ln2। ठीक है, बताइए सही है, कुछ गलत तो यस नहीं सर। है? ये है ना। Yes, हाँ, sir. e to power ln2, सर -2 +2 हो जाएगा सर वैल्यू। तो e to the power माइनस बाहर, तो e to power माइनस ln2, माइनस ln2 मतलब e to power 1/2, 1/2 आ जाएगा, हो जाएगा सर। है 1/2, है ना। बताइए, एंड Yes, sir, sir. सही है, 1. -1, तो माइनस हाफ, तो प्लस हाफ हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व। ये तो सिंपल प्रॉब्लम था, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं था चेंज ऑफ ऑर्डर का, क्योंकि सेम है एक्स वाई में। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव स्टिल 3-4 मिनट्स। 15.2 डबल इंटीग्रल्स ओवर general regions। general means now region is not rectangular, it may be any general region। means what? like you have suppose this type of figure, not elliptic नहीं है, x shape figure है, and you want to find double integral over this non-rectangular region। concept will be same। I will divide this into grids, small grids, taking line parallel to y axis and parallel to x axis। ये concept लगाएंगे, ठीक है। you can break it into sub regions। ये आपका वो xy प्लेन पर है सपोज। so fxy is
a function over bounded non-rectangular region R. So again I will choose, the constant will be same by the Riemannian sum. I will choose a small rectangle. I will take, suppose it is your kth, whose point, this is the, suppose this is length, this is width, and I am choosing any arbitrary point whose coordinate is xk comma yk. So I can take the Riemann sum. SR will be summation. If I am taking first n rectangular regions, so I can write k is equal to 1 to n f of xk, yk and delta ak. है ना? Keep in mind that R is non-rectangular region, and you will take the limit. So when limit n tending to infinity means I am increasing the number of rectangles. It means what? You are decreasing the area of the small blocks. So when limit, you will take the limit, it will become what? It will become double integral fxy dA over region R. You know? Provided the limit exists and the value of fxk yk, you are taking arbitrary. So it will give you the same double integral. Now the point is how to find the volume under the function z is equal to fxy when your a is giving you in terms of functions. यहाँ पर अगर functions के terms में given है, क्योंकि जब आपके पास इस तरीके से region दे रखा है, it means what? कि this is the some function, उस curve line आ रही है ना, ये कुछ function में दे रखा हुआ है, some y is equal to g1x and some upper होगा y is equal to g2x in this way. So that we will take in the tomorrow class, how to find this over general regions. Okay. Yes, sir. Okay, sir. चलिए. Okay, thank you, sir.